Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic, planning. It is a solution of the following problem: why, when, what. All this question answer is given by the planning. Okay. Sorry. Definition is given by the Nuzzo Donald, the great professor. Planning is something thinking in advance, what to do, when to do, where to do, with whom to do, etc. ठीक. प्लानिंग क्या है? समथिंग थिंकिंग इन एडवांस, जो कुछ भी हम एक्टिविटी करने से पहले सोचते हैं वो सब कुछ क्या है? हमारा प्लानिंग है. हम किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले उसके बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारा क्या है? प्लानिंग. कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है. ठीक है, ये सब क्या है? हमारा प्लानिंग. क्लियर हो गया? मीनिंग सिंपल है. वैसे भी आप सब रेगुलर प्लानिंग करते ही हैं. दैट इज़ ओनली द प्लानिंग. ओके, इट इज़ अ थिंकिंग इन एडवांस. Now today we are going to see the features of the planning. Planning helps in achieving the objective. Planning help in achieving the objective. See, without objective no organization is survive in the market. All the organization having their some or other objectives, right? Before deciding objective, no one business can start their activities in the business organization. Okay, so planning helps in achieving the objective. First of all, the organization has to set the objective and how to achieve that objective, that we decide in present time about the future. For example, now we have decided objective, okay, but it is achievable in future only, right? But before achieving it, we are make the direction, making the strategy, thinking about how to achieve that objective. Okay, so planning helps in achieving objective. इसका मतलब सिंपल है. ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करती है? गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है. क्योंकि बिना गोल अचीव करने के, बिना ऑब्जेक्टिव्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती ही नहीं है मार्केट में, राइट? सो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया. अब वो ऑब्जेक्टिव जो भी हमने डिसाइड किया वो फ्यूचर में ही अचीव होने वाला है, राइट? लेकिन वो अचीव कैसे करेंगे उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. दैट इज नोन एज द प्लानिंग, राइट? सो हियर प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द objectives. Next, planning is a primary function. As I in the last lecture only I already teach you the basic about all the function. हमने 5 function देखा था: planning, organizing, staffing, directing and controlling, right? Out of all this, the primary function of the management is your planning. See, without planning, the other function like organizing, staffing, directing, controlling, all are useless or no meaning of that. Okay, so that's why planning is your primary function. Planning is a continuous process. What is the meaning of this? It means that once you start the business you set the business objective. After that, you decided the activities to complete that objective. Okay, that is planning. But it is not up to that only कि आपने गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस टाइम पे आपने प्लानिंग बना दिया कि ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग अचीव करेंगे, बस प्लानिंग ख़त्म. ऐसे नहीं होता है. क्योंकि गोल सेट होने के बाद उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद रेगुलरली उसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वो हमें रोज डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, रेगुलरली वी हैव टू मेक द प्लानिंग, देन ओनली वी कैन एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेड द प्लानिंग, यू सेट योर ऑब्जेक्टिव, यू विल अचीव द 95% in your class 12th commerce section, right? But for achieving that you have made the plan that ये सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स लाना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये सब कर लेंगे तो हमारा 95% आ जाएगा. My dear student, is it so that first day only you made the such plan and after that shut your plan strategy? No. मतलब गोल सेट करने के बाद क्या आपने उसी दिन प्लानिंग करके छोड़ दिया, उसके बाद आपने कभी प्लान नहीं किया? इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट? आप रेगुलर प्लानिंग करते हो कि किस तरह से कि कौन कौन से चैप्टर फिनिश होंगे और किस तरह से हमारा 95% आएगा. यानी आपका 95% आप 9 मंथ आफ्टर नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि आप रेगुलर आपका 95% एक्टिविटी करते हैं ताकि आपका 95% वाला गोल अचीव हो, राइट? सो हियर वी से दैट प्लानिंग इट इज़ व्हाट? कंटिन्यूस प्रोसेस. यानी हमें रोज़ की एक्टिविटी को डिसाइड करना होता है इन एडवांस में. ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्लानिंग. Planning is all pervasive. Why it is all pervasive? Because
in the organization all the level of management have to make the plan, right? They all are do the management activity, for that's why they all are making their plan. So that's why it is called that all pervasive. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हर कोई प्लानिंग करते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, राइट? इसीलिए कहा गया है प्लानिंग कम अंडर all the department, all the level of management. That's why it is a all pervasive. Planning is futuristic. Simple meaning. Planning is what? Futuristic. Everyone know that whatever we plan, that is for only future purpose, right? So planning is what? Your futuristic means what to do, when to do, how to do, all these things we are deciding in planning. But all this activity we are do when? In future only, na? Right? So that's why it is known as a futuristic activity. Planning involved decision making. Simple. Planning involved decision making means that with the help of the planning only we are taking the final decision about the any activity or strategy method for achieving our objective. Simple. Suppose you have a multiple plan. See, first of all, though, whenever we make the plan, we always have the plan A, B, C. It means that no one making the one plan for any one activity. They all are in general only making the 2-3 planning together. हम लोग एक टाइम पे एक ही प्लान नहीं करते ना. मान लो हमने कोई एक प्लानिंग बनाया, ठीक है, उसमें लेकिन कोई चीज़ शॉर्टकम्स आएंगे, कोई चेंज होगा तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका हम लोग 2-3 प्लान और बैकअप में रखते हैं, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, उन 2-3 प्लान में से जो बेस्ट प्लान होगा उसी को चूज़ करते हैं. तो इस सारे प्लान को अल्टरनेटिव एनालिसिस करने के बाद फाइनल डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है प्लानिंग. ओके, नेक्स्ट टाइम प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. सिंपल है, प्लानिंग हम लोग फिजिकली नहीं करते हैं, मेंटली करते हैं, राइट? तो ये क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग जो भी होता है वो थिंकिंग करना होता है, और थिंकिंग कहाँ होती है? मेंटालिटी में, राइट? तो इसीलिए ये क्या है? मेंटल एक्सरसाइज. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्या था? Planning helps in achieving objective. Second one, planning is your primary function. It is a continuous process, all pervasive, futuristic, and help in decision making. And the last one is your mental exercise. Clear? Now moving to the next one, importance of the planning. Planning provide the direction. Simple. You all know that whenever we decide the activity, what to do, when to do, all this question answer is your only giving you the direction, na, how to achieve your objective, right? That's why we say that planning provide the direction. Simple है. Planning जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या decide करते हैं? कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है. तो यही चीज़ें क्या है हमारे लिए डायरेक्शन हो जाती हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी से दैट प्रोवाइड द planning provide the direction. Next one, reduce the risk of uncertainty. For example, you going to do some activity, okay, or some work without thinking. For example, you went to school for giving your exam without preparation. Do you think you will get the passing mark also? Not even possible. Not even the able to attempt the paper. Why? आप लोग ने प्रिपरेशन किया ही नहीं, बस जाके एग्ज़ाम में बैठ गए एग्ज़ाम देने के लिए. आप एक भी क्वेश्चन लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि आपने उस एग्ज़ाम पेपर को लिखने का प्लानिंग ही नहीं किया, राइट? सो अनसर्टिनिटी क्या है? फेल होने की चांसेस है, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी अनसर्टिनिटी होती है, रिस्क मतलब ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इस टाइप की अनसर्टिनिटी से उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए, ठीक है, बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. जैसे अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, राइट? अब सडनली और भी आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग अपने पास पहले से प्लानिंग करके रखें कि इनकेस अगर बढ़ा तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, और ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, और अगर खुला तो फिर एक्टिविटी ऐसी होगी. मतलब आप ऑलरेडी पहले से प्लान कर चुके हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो क्या करेंगे, नहीं खुलेगा तो क्या करेंगे, राइट? क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे पता चला कल के कल लॉकडाउन खुल गया, तब पता चला अचानक से लॉकडाउन बढ़ गया तो क्या करेंगे, राइट? सो इस तरह के रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हमने क्या किया है? पहले से ही प्लानिंग करके रख देते हैं, राइट? नेक्स्ट है रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. समटाइम्स व्हाट हैपन, यू नो, मान लीजिए आप बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है. सपोज यू वांट टू गो एंड ओपन योर स्मॉल टी स्टॉल, राइट? फॉर ओपनिंग अ टी स्टॉल, हाउ मच फंड you required? Depend on the condition whether you have your own place or not,
योर ओन फिक्स कैपिटल और नॉट, राइट। सो हम पहले प्लानिंग करते हैं। अगर हम प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन कौन सी मटेरियल्स लगेंगे, कौन से कैपिटल्स लगेंगे, लेबर कितने लगेंगे, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, और इन सब का बजट डिक्लेयर करने के बाद अगर हम फाइनेंस जनरेट करके शॉप खोलेंगे तो ये प्रॉपर होगा। लेकिन मान लीजिए बस आपने डिसाइड किया कि हमको टी स्टॉल खोलना है और हमारे पास एक भी रुपये नहीं, हम बैंक चले गए, लोन ले लिए, कितना 1-8 लाख रुपए दे दीजिए, कम से कम तो 1 लाख चाहिए ही। आपको लगता है चाय की दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 लोग थे। अब मिस्टर ए ने 1 लाख ले लिया और मिस्टर बी ने सिर्फ 5,000 रुपये लिए। कहे नहीं यार, चाय की दुकान खोलने के लिए सिर्फ 5,000 काफ़ी है। डू यू थिंक कि सिर्फ 5,000 में भी चाय की दुकान खुलेगी? अगर आपके पास जगह भी नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है, मिस्टर ए ने 1 लाख ले लिया है, अब जो बैंक से लोन लिया है उनको उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट। और मिस्टर बी को भी देना पड़ेगा, लेकिन ए को ज़्यादा देना होगा क्योंकि उन्होंने 1 लाख लिया है, और बी को कम देना होगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5,000 लिया है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या हो रही है। पहले हम लोग बात करेंगे मिस्टर ए की, ठीक है। उन्होंने 1 लाख रुपए ला करके एक फिक्स जगह लिया, गैस स्टोव बर्तन सब कुछ सारे मटेरियल्स और कैपिटल्स ले लिए जो भी उनको रिक्वायर्ड थे, और उसके बाद भी पैसे बच गए, ठीक है। तो अभी आप कहोगे कि मैम फिर बच गए तो बैंक को रिटर्न कर देंगे। आई ऑल्सो एग्री विद दैट। लेकिन जब से 1 लाख रुपए लिया और जब सारे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसके बाद जब पैसा बच रहा है, उतने पीरियड का तो इंटरेस्ट आपको पूरे 1 लाख पे देना होगा कि नहीं? हाँ, तो वो आपका वेस्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि जो पैसा आपके पास बच रहा है, मान लीजिए 15,000 में आपका सारा काम हो गया और बाकी 85,000 आपका बच गया, तो 85,000 आपको लगा ही नहीं। लेकिन जब से आपने लोन लिया तब से लेके आपने जब तक एक्टिविटी की तब तक का इंटरेस्ट तो आपने 85,000 पे भी पे किया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ इंटरेस्ट, उतना कॉस्ट फालतू में चला गया, राइट। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। उन्होंने 5,000 तो ले लिया, अब उनको इंटरेस्ट भी सिर्फ 5,000 पे ही देना है, लेकिन 5,000 में उनका टी स्टॉल पूरी तरह से खुला ही नहीं। गैस स्टोव बर्तन ले आए लेकिन रूम ही नहीं ले पाए, बेंचेस ही नहीं ले पाए जहाँ कस्टमर आके चाय पियेंगे, राइट। तो उनका बिजनेस भी नहीं खुला और 5,000 ही लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिसोर्स कम पड़ गया और 5,000 पे इंटरेस्ट तो देना ही है, बिजनेस खुला ही नहीं और इंटरेस्ट देना है, राइट। तो क्या हो रहा है? एक जगह ओवर फंड आ गया और एक जगह कम पड़ गया, मतलब एक जगह ज़्यादा आ गया और एक जगह कम पड़ गया। तो ये दोनों क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने स्टॉल खोलने से पहले प्लानिंग नहीं की थी, राइट। तो इस तरह के ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को हम लोग प्लानिंग के थ्रू कम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया। ये हमेशा जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, राइट। तो ये हम लोगों को जो भी प्लानिंग एक्टिविटी है, ये इनोवेटिव स्किल हमारी जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं 2-3 प्लान्स रहते हैं, उनमें से जो बेस्ट प्लान होगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग के प्लानिंग चल रहे थे कि अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा, हम लोग रेगुलर स्कूल जाएंगे, कॉपियाँ लेनी है, बुक्स लेने हैं, स्कूल के न्यू यूनिफॉर्म लेने हैं, राइट। हमारा शेड्यूल ये होगा ये होगा ये होगा, आपने ऐसे प्लान कर लिया। स्टार्टिंग के 2-3 दिन बंदी चल रहा था, लॉकडाउन परमानेंट नहीं हुए थे, लेकिन 1 दिन बंद 2 दिन बंद ऐसे हुआ था, राइट। तो उसी टाइम पे हमने ये भी सोच लिया था कि अगर मान लीजिए छुट्टी भी होगी तो फिर हम लोग घर पे बैठ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइम पढ़ेंगे, क्या करेंगे। यानी आपने क्या किया? 2-3 प्लान बना लिया, राइट। और अभी देखिए लॉकडाउन है, स्टडी भी चल रही है, स्कूल भी बंद है, फिर भी आपका एजुकेशन हो रहा है। तो ये कैसे हो गया? बेस्ट प्लान को चूज़ करने की वजह से। तो हमें क्या होता है, जब भी प्लानिंग करते हैं तो हम लोग उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट करके फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि अब स्कूल बंद होने के बावजूद आपकी स्टडी चल रही है, आपका प्लानिंग एग्जीक्यूट हुआ लेकिन अलग वे में हुआ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। सो द फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? वंस वी मेक द प्लान एंड वी स्टार्ट द एक्टिविटी based on that planning, so after that we cannot able to change if we think about it. इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बार प्लानिंग करने के बाद आपने
उस प्लानिंग पे काम करना चालू कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको फिर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, उस प्लान को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ रिजिडिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, राइट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान वर्क नहीं करता है, क्योंकि देखिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, राइट, यानी हम लोग फ्यूचर को एनालिसिस कर सकते हैं, बट डू यू थिंक कि 100% श्योर हम लोग फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कि मतलब हमने जो भी सोचा फ्यूचर में एग्जैक्ट वही हो, एग्जैक्ट तो दूर की बात है, 90% भी वैसा नहीं होता है कभी कभी तो, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन मेक द प्लानिंग, राइट, दैट प्लान इट्स गुड बट इट इज़ नॉट वर्क अंडर द डायनामिक एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली प्लानिंग वर्क नहीं करता। सपोज April month is a season of opening all the school, right, that this time all the stationery shop, school uniform shops all are planning that their turnover of sell, right, according to that they stock up with the all goods which we require that at this time, but do you think this due to this lockdown उनका business, उनका planning हो पाया clear? नहीं, राइट, उनका प्लानिंग जो भी उन्होंने सोचा था बिल्कुल नहीं हो पाया, राइट है। सो यही कहा जाता है कि जो भी प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस द क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है, एक बार जब आपने प्लानिंग कर दिया तो उस प्लानिंग में आप किसी भी एक्टिविटी को करने का स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि जो भी प्लानिंग है उसमें काम ऐसे ऐसे करना है, तो उसके बाद जब भी आप वो काम कर रहे हैं तो उसमें फिर और कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग के सीक्वेंस वाइज ही हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने सीक्वेंस स्टेप को डिसाइड किया है, राइट। इसीलिए हम लोग अपने प्रोसीजर ऑफ एक्टिविटी कंप्लीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग नई क्रिएटिविटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। क्या होता है, प्लानिंग helpful in achieving objective but it does not guarantee the success, right, it is depend on the luck। गारंटी नहीं देता है कि आप प्लानिंग जो कर रहे हो उसके थ्रू ही आपकी ऑब्जेक्टिव्स 100% अचीव होगी, वो इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, राइट। सो सेम वे प्लानिंग भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, बट इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू अचीव द सक्सेस, okay। And the last one, it is a time consuming, it is a time and cost consuming। प्लानिंग जो होता है वो टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है। सी वेन एवर वी मेक द प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। हमारे पास्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग फ्यूचर का प्लानिंग प्रेजेंट में करते हैं, क्लियर। सो फ्यूचर के सारे डेटा को कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, फिर कंपेयर करना, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और उतना ही ज़्यादा कॉस्ट भी कंज्यूम होता है। ऑल द पेपर वर्क में, फिर जितने लोग उस प्लानिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन सब की सैलरी, ठीक है, क्योंकि वो जब भी प्लानिंग होती है तो ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे एक नहीं बल्कि 2-3 प्लान्स करते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है। हम लोगों के प्लानिंग छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए हम लोग 10-5 मिनट में प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम और कॉस्ट इंकर्ड होता है, राइट। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट लिमिटेशन का, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। सो लिमिटेशन एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग प्लानिंग डज नॉट वर्क। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, and the next one, planning does not guarantee the success, and the last one is it is a time and cost consuming, okay। So we will stop here today। Homework as usual, whatever the topic I teach you, write the explanation by your own. Student, remember one thing, please complete with your homework because I can demand with any student at any time, okay। Write the explanation of all the points by your own while understanding whatever I explain you, okay। Happy end, stay home, stay safe। Jai Hind।